simple idea between me and my brother Ramesh. We wanted to create a space for music, where music isn't just heard, it is felt, it is experienced. So, a platform for artists to be sung there, to come together and break boundaries. So, this is how Backstage was such a simple idea of Backstage, and that too going something against the trend, which is trending. We're not following that. We're making our genre, and I hope that you all love us. Thank you so much. So, यहाँ पे कितने artists, like any singer, dancer, anyone here? Okay, so there are some. Yeah. So same way में जैसे कि यहाँ पे बहुत singers हैं, we can see so many artists here. Every artist needs a platform. So for that platform, we made Backstage. जहाँ पे artists हैं, we have singers, lyrics writers, and everyone. So yeah, that's how we made Backstage, and you can see we got with Kshitij with the second song, and further we will be with them as an associate sponsor. And thank you all for coming. So I would like to say that I'm very proud that my father is sitting here, who is the main person behind everything, Backstage, the song, and honestly, everything is possible because of him. So for you all, Shabab Sabri, he's a very well-known singer like Hud Hud Dabang, Humka Peeni and all that stuff. So he's the reason for Backstage, he's the reason for this song and everything. So first of all, thank you. And Backstage ka Damali being the first song because of Muharram, and we had some concepts. So same way, that was the first song. Now the journey will go on. So for you. So this song, I hope you all love this song, and I hope you're gonna show your love to the 6 songs which are left. One of the 7 songs in Backstage, and I hope this love, by all your love, within a week, this song has hit 5 million plus views, and I hope the next songs will be fabulous. Thank you so much. Just to give you some context, sir is the voice behind very famous songs and some of our most favorite songs, right from Hud Hud Dabang to Humko Peeni Hai. And sir, I'd like you to share a few words about Backstage and the first episode being Damali. सभी लोगों को मेरा आदाब। कैसे हैं आप लोग? वॉइस नहीं आ रही है। कैसे हैं आप लोग? क्या बात है, क्या बात है। मैं आज जो आपके रूबरू आया हूं, उसका कारण ये है कि आज रमेश सुहेल का नेक्स्ट सॉन्ग रिलीज है और मैं DTM मिस्टर यश का थैंक यू बोलना चाहता हूं और क्षितिज का और मेरी PR टीम, मेरी खूबसूरत बहन, एक बार जोरदार तालियां। नंबर 1 PR इंडस्ट्री। और मैं, आप लोगों ने मेरे गाने सुने हैं, सुना है हुड हुड दबंग, हमका पीनी है, तेरे नैना, जलते दिए, दिल करे चूचे, वगैरह वगैरह, बहुत है, बहुत है। मगर मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि आज मेरे दोनों बेटों का सॉन्ग रिलीज हुआ है और वो आज इस मुकाम पे काम कर रहे हैं। ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है, इनके लिए दुआएं, ब्लेसिंग दीजिए। थैंक यू सो मच। और कुछ बाकी? Thank you so much, sir. We're honored to have you. सारे सितारे हैं यहाँ, बस तू ही अकेली चांद सी है। कोई रहे या ना रहे, तेरा होना ही जरूरी है जो मेरे रूबरू। होना है मैंने और मेरा तो भूला पर याद तू है, इतने नशे के भी बाद तू है। क्यों जाने क्यों दुनिया बेकार है, सच्चा तेरा प्यार है, सच्चा तेरा प्यार है। दुनिया बेकार, दुनिया बेकार है, सच्चा तेरा प्यार है, सच्चा तेरा प्यार है। दुनिया बेकार है। Thank you. Wonderful song. What do you have to say? The whole
concept of Backstage? How did it begin? And reaching on to this song today. So we announced the Backstage on Suhail's birthday, and we got the मेरा favorite वाला गाना on my birthday. So I'm happy with that. Absolutely. So what's the concept of Backstage? So Backstage concept is very easy. Like every artist needs a platform. So we also wanted a platform, but we were looking forward. We have to do something very out of this industry, very different. So we met DTM Yash Bhai, and that's how we began to think about Backstage. Then we met Akash, the director of Backstage, and similarly, with the growing roots, we met amazing artists like Khanzadi. We met Raj Burman, we met Kavita ma'am, and everyone like got into this. कुछ ना कुछ they also had the vision, right? Okay, let's make it big. Why to just कैसे भी करके we're not going to release it ऐसे ही करके कुछ भी करके. So everyone had like सबका effort है इस गाने में, सबका every artist, and that's why सब इतना प्यार मिल रहा है इस गाने को. Backstage is a platform for music. Be it new artists or known artists, they come together to create something magical and unstoppable. So yeah, we want to create something which is unforgettable and just break the boundaries. Art is getting merged, be it new ones, best knowns, they're getting merged on a single track. And that's why we created Backstage, to create a history. Thank you. Composing and then having Kavita ji sing for your Raj. It's been just like a wonderful experience, I'm sure. Tell us more about that. So yeah, that's a very actually like amazing collaboration, because it was something very different, a pop and different voice like Khanzadi with Raj Burman being the male voice, and Kavita ma'am is actually, she's a legend, and उनका ये गाने में आना was like the best part of the song. तो ये गाना इतना प्यारा collaboration है, every artist has given their best, so that's how we are very happy with the song. Khanzadi, what's been your experience on Backstage? You're the central part of the song. Oh, it's lovely. I'm really grateful to be a part of Backstage, and they are very hardworking, very supportive. बहुत सपोर्ट किया इन्होंने मुझे. मैं तो रैपर हूँ, बेसिकली मैं रैप करती हूँ, पर इन्होंने मुझे बोला कि नो, यू नो व्हाट, यू हैव अ पॉप वॉइस, तो आपको ना गाना भी गाना चाहिए, यू नो जस्ट एक्सपेरिमेंट. एंड फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है मेरा लाइफ का ये, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दिस गाइज जिन्होंने समझा मेरे टैलेंट को, और मैं डे बाय डे सीख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ इन दोनों से, and hopefully आगे जाके भी हम और काम करें. That's what I wish. Definitely. And yeah, lovely. So technically this gets your debut with release. Yes. Yes. एक गाना अच्छा गाना बनने में बहुत अच्छी लिरिक्स की बहुत ज़रूरत है, और बहुत अच्छा लिखा आपने. तो क्या ब्रीफ रहा, कैसा रहा, स्टेप टू एवरीथिंग? ये एक्चुअली अभी जल्दी में मेरी शादी हुई थी, तो मैं गांव से यहाँ आया मुंबई, तो शाम को लिटिल कहीं पे हो गया था, तो मैडम याद आ रही थी. अब वो थॉट आ गया कि इतने नशे की भी बात तो भूल ही नहीं पा रहा था, तो और इन लोगों ने उसको यहाँ तक पहुँचा दिया, और अब आप लोगों के माध्यम से सारी दुनिया तक जाएगा. बस आप सब लोग उसे प्यार दें, पर हाँ ये दिल से निकली बात है, और मुझे पता है दिल तक पहुँचेगी. ये गाने में कविता जी हैं, वेरी आर्टिस्ट एंड दे ऑल did their part very beautifully. So with Backstage it's always big. So I don't get, it's much more like कि मेरे को सिर्फ एक और दो आर्टिस्ट नहीं मिलते, दो आर्टिस्ट तो मेरे साथ ही बैठे रहते हैं हमेशा. एंड जब मेरे पास दम अली भी आया था, इट वाज अगेन वी हैड लाइक, आपने देखा इट वाज अ मल्टी स्टारर, देयर वर 5 सिंगर्स इंक्लूडिंग. सिमिलरली विद सेकंड सॉन्ग आया तो इट वाज लाइक लुकिंग कि हम लोग 2 लोग करेंगे पहले कि क्या करेंगे, लेकिन फाइनली एक कॉल हुआ कि नहीं, लेट्स स्प्लिट इट इनटू 3, और वो वापस हमारे फॉर्मेट में आ गया. एंड देन वी केम अप विद दुनिया बेकार है एक सॉन्ग हमारा, और 5 आर्टिस्ट आर ब्रिलियंट आर्टिस्ट, सॉन्ग ब्यूटीफुली. और वीडियो वाइज आप लोगों ने देखा कि हाउ वाज इट, एंड आई होप फर्स्ट आपने दमली भी फॉलो किया है हमें विद द मीडिया, एंड सेकेंड आप फिर वापस दुनिया बेकार है देख रहे हैं, तो ऑडियंस इज मच मोर द रिसेप्टिव वन, जो हमको व्यू बताते कि कौन अच्छा है. सो आई होप यू ऑल गाइज आर लव.
You know, you both have been students of Mithiba, and coming back to Kshitij and launching your song must be a very enriching experience. Why? Because Kshitij is actually, I'm very connected to Kshitij because I always used to see कि many artists are coming and performing. It was a dream to perform in Kshitij, which I hope comes true on the pro nights. But before that, I was like, I want to stay connected to Kshitij. मुझे ये backstage को Kshitij के साथ जोड़ना है. So Sohail and I decided that let's sponsor Kshitij. So we are the associate sponsor for Kshitij, and इसी के साथ हम अभी आगे जितने भी गाने we'll do it here. जब आप दोनों गाना कंपोज करते हैं तो दोनों भाइयों में झगड़ा होता है कभी? नहीं. डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, ये ऐसे नहीं चाहिए. अभी एक्चुअली क्या है, फिल्म है, हर चीज़ है, तो उसके हिसाब से जो भी कंपोज बनती है, अगर कोई पसंद नहीं आती वो कहीं और चली जाती है. बाकी तो एज आई सेड बिफोर, ये लड़ाई होती है लेकिन म्यूजिक सॉल्व कर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन एंड में सोल्यूशन होता है. जीतता वही है, हमारा म्यूजिक जीतता है. सो या इट्स नॉट रमीज, इट्स नॉट सोहेल, इट्स रमीज सोहेल म्यूजिक. देसी तड़का म्यूजिक especially from you, I would like to know what you would like to say about the music video. Desi Tadka Music is actually the biggest label coming. Yeah. And I know that, and I say it because I know it. क्योंकि इतना एक विजन को आगे लेके जाना, इट्स वेरी हार्ड फॉर अ लेबल, बिकॉज वो एक गाना दो गाना कोई भी सोच सकता है कि हम एक गाना कर लेंगे इनके साथ, दो गाना कर लेंगे. समवन हु इज स्टैंडिंग विथ यू फॉर अ सीजन एंड ऑल्सो साइनिंग अस फॉर द 5 सीजन्स कमिंग. तो बैक स्टेज के 5 सीजन जितने भी है सब हम ऑलरेडी साइंड है. तो ऐसी हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई. एक्चुअली बताता हूँ कि बहुत लेबल्स ने हमें कॉन्टैक्ट किया विद अ लॉट ऑफ स्टफ कि हम ये सब कर लेंगे. बट वेर एवर यू हैव अ फैमिली लाइक बॉन्ड, वहाँ पे काम करने में मज़ा आता है. तो देसी तड़का म्यूजिक विद बैक स्टेज सीजन 1 एंड मोर अपकमिंग थिंग्स विल बी द बिगेस्ट लेबल. We're really blessed to have Desi Tadka Music in our life. Yash Bhai, everyone. Yash Bhai is a brother to us, and his vision, it aligns with ours. Like we are growing. So Yash Bhai is also like, he has a huge vision, and I respect him so much. We missed you today, but next event पे हम साथ आएंगे. शूटिंग करने के समय सिलसिले आपका ये डेब्यू गाना हमारा था, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर फ्रॉम द शूट and recording of the song? It was a wonderful experience. Actually no, डेब्यू मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि पहले भी मैंने किया है काम, पर ऐसा नहीं किया. फाइनली लाइक मेरे सामने माइक था, मेरे साथ कविता मैम थी, राज बर्मन थे, ये दोनों थे, द होल टीम, यू नो. ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा मैंने किया नहीं था. सो दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैंने लाइक यू नो जैमिंग किया, और वीडियो पे भी ऐसा लग रहा था दैट वी वर सिंगिंग लाइव. सो यू नो इट वाज अ ड्रीम फॉर मी, यू नो, टू कोलैब विद कविता मैम. एंड मैंने उनको बचपन से ही सुना है, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, ये सब तो हम जानते ही है. सारे स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे अभी भी सुनते हैं. सो या आई मीन ड्रीम कम ट्रू हो गया मेरे लिए तो. एंड अगेन लाइक यू नो जितना भी थैंक यू बोलूँ कम है शब्द, पर फिर भी लाइक यू नो जस्ट इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. सबसे पहले आप पूरी टीम को बहुत बधाई हो, जिस तरह की यंग टैलेंट दिखा रहे हैं, नए चीज़ लेके आ रहे हो आप. सेकंड सॉन्ग है आप लोगों का देसी तड़का के साथ. देखा ये गाने में काफ़ी यंग लोगों को जुड़े गया है, और जानना चाहते हैं कि जो नाम है सच्चा तेरा प्यार बाकी दुनिया बेकार, किसका थीम था, किनका मतलब सोच था कि इस तरह का नाम रखा जाए? उनका थोड़ा सा बताएं. जो अभी लिटिल के बाद इनका उनका था ये कॉन्सेप्ट. वो मैं अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहा था, तो मैंने कहा कि दुनिया बेकार है सच्चा तेरा प्यार है, तो उसके लिए लिखा था. इन्होंने उसको कहाँ से कहाँ हमसे बैठे थे एंड वी वाज स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम. सो देयर केम अ थॉट, व्हेन द वर्ल्ड फील्स chaotic बट लव टेक्स ओवर. तो यही थॉट पे हमने गाना बनाया कि दुनिया बेकार है सच्चा तेरा प्यार है. दुनिया इज वर्थलेस बट द लव इज ट्रू. सो यस. कास्टिंग की बात करिए तो खानजादी को किसने सोचा कि इस तरह इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल लड़की इसमें हिट हो रहा है, इसको कास्ट किया जाए? एक्चुअली खानजादी को हमेशा से इनको एक है ना एज अ रैपर एंड एन एक्ट्रेस देखा. बट व्हेन आई हर्ड अ वॉइस इन वन ऑफ द रील, तो इट वाज अ रियली डिफरेंट पॉप वॉइस, जो कि इंडिया में एक्चुअल में बहुत कम है, और जो कुछ बड़े सिंगर्स भी है दे ट्राई, पर ऐसा वोकल है नहीं. सो शी हैज़ अ वेरी डिफरेंट टेक्सचर, एंड उस टेक्सचर को एक इस गाने में बहुत ज़रूरत थी. सो यू कैन सी कि सॉन्ग एक खिल गया है.
because we wanted that pop मैं voice. सीख रही हूँ अभी भी, इन्होंने ही सिखाया है. ऑनेस्टली हम लोग 6 घंटे स्टूडियो पे लगातार हमने जैमिंग किया और तब जाके मैं गा पाई. और मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस है कि एक्चुअली जो रियल म्यूजिशियंस हैं उन्होंने मुझे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिया, तब जाके मैं ऐसा कर पाई. और मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ और मैं सीख रही हूँ, तो बस किलिंग इट. खंजादी, आपको हम जानना चाहते हैं कि इसके अलावा आपके पाइपलाइन में क्या क्या अभी आने वाला है, जिस तरह के लोग तैयार करेंगे? अभी तो मैं कहूँगी म्यूज़िक रिलेटेड चीज़ें ही आएगी. जैसे आपने अभी देखा दुनिया बेकार है, मैंने गाना गाया यहाँ पे. और अभी मेरा कुछ सिंगल प्रोजेक्ट्स है, इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स है, जहाँ पे मैं रैप कर रही हूँ. और मेरा एक EP आने वाला है जहाँ पे मतलब 5 गाने रहेंगे. और मेरा EP का नाम है ज्वालामुखी. सो ये जो रूप था मेरा, ये था चंद्रमुखी, और अब आ रही है ज्वालामुखी. सो स्टे ट्यून फॉर इट. देसी तरका के साथ आप जो म्यूजिक है किस तरह काम करके लगा, सर के साथ जो भी कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे. सारे टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, गाइड किया. सारे के सारे बहुत अच्छे हैं. और देसी तरका लेबल जो है उन्होंने भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है, मुझे इस लायक समझा है कि मैं गा पाऊँ. और मैंने गाया भी, ट्राई किया तो अच्छा हुआ. सो यस, थैंक यू. हैप्पी बर्थडे आपको. Thank you. हैप्पी बर्थडे टू रमेश. Thank you. Thanks to Kshitij and Pranav and other people in the Kshitij team. Thanks to Paruldi for coming and helping us always. हर बार हर इवेंट में अगर हमें कोई सबसे अच्छा बूस्ट मिलता है, it's because of her. So thanks to her. Thank you. Thank you so much. We're really grateful. दुनिया बेकार है, सच्चा तेरा प्यार है, सच्चा तेरा प्यार है. दुनिया बेकार है, दुनिया बेकार है, सच्चा तेरा